Hello students, how are you? Now this is my third video on the chapter, first chapter of geography, resources and development, and I hope you have watched two videos which were already uploaded. Okay, and you must have understood the chapter. Now let's talk about the last part of this chapter. So here in this chapter, dear students, we will talk about classification of soils. So here on the basis of the factors responsible for soil formation, color, thickness, texture and age. Okay, this all we will discuss here. Chemical and physical properties, how soil is formed. The soils of India are classified in different types. Okay, which different types are there? We will discuss in this part. So let's start. First we have alluvial soils. So this soil is the entire northern plains are made of alluvial soil. जितना भी northern plains है वो सारी वहाँ पे कौन सी soil मिलती है found होती है that is alluvial soil. This soil is deposited by three important Himalayan river systems. First is the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. Okay, how many rivers are there? That important soil deposited by three important Himalayan rivers. First is the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. It is also found, now we have to see that where this soil is found. It is found in Rajasthan, Gujarat and eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi and Godavari and the Krishna and the Kaveri rivers. Okay, so we have to learn this also, that where this soil is found. Rajasthan, Gujarat, eastern coastal plains, particularly where in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. Clear? So first we have learned here that it is deposited by three important rivers, Himalayan river systems. One is Indus, second Ganga, and the third is the Brahmaputra. And it is found in Rajasthan, Gujarat, eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri rivers. Now, next we have the alluvial soil consists of various proportions of sand, ठीक है, silt and clay. इसमें बहुत सा proportion होता है sand का, silt और clay का, ठीक है. ये क्यों इसमें sand का, silt और clay का होता है? Because ये कहाँ से आती है? हिमालय से, Indus River, गंगा और ब्रह्मपुत्र. इसलिए ये अपने साथ किस चीज को लेके आती है? Sand, silt and clay. So as we move islands towards the river valleys, soil particles appears to be bigger in size. Okay, जैसे जैसे हम आगे देखें वैलीज में तो सॉइल पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो बिगर साइज में हो जाते हैं, वेयर एज इन द अपर साइड ऑफ द रिवर वैली द सॉइल्स आर कोर्स. अगर ऊपर में देखें तो सॉइल जो होती है कोर्स होती है, ठीक है, रफ सॉइल होती है. सो अगर हम इसकी एज की बात करते हैं, बेस्ड ऑन एज, तो alluvial soils कैन बी क्लासिफाइड एज वन, old alluvial, this is known as Bangar. The Bangar soil has a higher concentration of conker nodules than the Khadar. Okay, फर्स्ट भी है बांगर सॉइल, नेक्स्ट जो न्यू वाली है, ठीक है, उसको हम कहेंगे खादर. इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर. ये जो खादर सॉइल है ये मोर पार्टिकल फर्टाइल होती है. ओके, फर्टाइल है किससे, इसके पार्टिकल्स फाइन होते हैं और ये मोर फर्टाइल होती है देन बांगर सॉइल. सो alluvial soils are very fertile. You can keep this in mind that it is very fertile soil. These soils contains an adequate proportions of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of. Now this soil is important for growing sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulse crops. Okay, ये किस किस कौन कौन सी that crops में आती हैं? शुगर केन, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है इनमें, पैडी, wheat and other cereal and pulse crops. Clear? So two we have here classified, all alluvial Bangar and new alluvial Khadar soil.
So this soil is a alluvial soil, this picture. Clear? Okay, next we have black soil. So this black soil is black in color, okay, and is also known as regular soil. Okay, another name is the regular soil. Climatic conditions along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil. Parent rock material, that means कि ये मीन की कहाँ से बन के आएगी, रॉक से, ठीक है। इनकी जो इनकी जो ये निकलती है, ये फॉर्मेशन जो होती है इसकी मटेरियल, रॉक मटेरियल से होती है, इसको पैरेंट रॉक मटेरियल भी कहते हैं। आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. So this soil is ideal for growing cotton, okay, and is also known as black cotton soil. ओके आपने इसको पहले भी इसको पढ़ा होगा कि इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा भी अच्छी होती है. सो नेक्स्ट वी हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप region spread over northwest Deccan plateau and is made up of lava flows. तो क्या होता है कि जब लावा होता है तो लावा जब ऊपर आके ठंडा हो जाता है तो ये वैसे भी वहां से ये ब्लैक सॉइल वहां से भी बनती है. द सॉइल कवर्स द प्लेट्यूज ऑफ, अब ये कहाँ कहाँ पे होती है, कौन कौन से प्लेट्यूज में होती है, महाराष्ट्र, ओके, देन सारोशस्त्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. ओके कहाँ कहाँ पे होगी ये, महाराष्ट्र, ओके, सारोशस्त्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड्स इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन. तो किस साइड को एक्सटेंड होती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन along the गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज. ठीक है, तो किस किस साइड को, गोदावरी साइड को, ठीक है, और कृष्णा वैलीज. अब जो ब्लैक सॉइल है आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लियर मटेरियल. बहुत ही ये इसका जो मटेरियल होता है ये बहुत फाइन होता है एंड वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर. और इस ये जो सॉइल होती है ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे से होल्ड कर लेती है. ठीक है, तो इसलिए इसमें जो कॉटन है सबसे ज्यादा इसके इसमें जो ग्रोइंग क्रॉप्स है वो कौन सी है, कॉटन. So black soil is nutrients rich and contains calcium carbonate, magnesium and potash and lime. पोटेश एक और भी और किस में था हमने देखा, एलुवियल सॉइल में भी है. ठीक है, लाइम भी उसमें होता है. ठीक है, और ब्लैक सॉइल में भी. द सॉइल इज स्टिकी, बहुत स्टिकी होती है ये. व्हेन वेट, जब ये वेट होती है तो बहुत स्टिकी होती है एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड. अगर तो इस पर पहले शावर इसमें हो जाए, बारिश हो जाए, तो अगर इसके ऊपर वर्क कर लिया जाए, इसको प्लो कर लिया जाए तो ठीक है, या फिर मानसून से पहले, नहीं तो ये इतनी स्टिकी होती है कि इसके ऊपर वर्क कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. सो दिस इज ब्लैक सॉइल. Clear students, understood? So move to next one. Next we have red and yellow soils. So this type of soil develops on crystalline igneous rocks in area of low rainfall. कहाँ पे होती है, जहाँ पे low rainfall होती है in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. Clear? Please keep underlining in the book also. These soils develop a reddish color. अब इसका कलर कौन सा हो गया, रेडिश कलर हो गया. ड्यू टू, अब क्यों रेडिश हुआ, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन. ठीक है, किस चीज की डिफ्यूजन हुई इसमें, आयरन की. क्रिस्टलाइन में आयरन की डिफ्यूजन से इसका जो कलर है वो रेड में आ गया. एंड मेटाफोरिक रॉक्स, इसमें क्या ऐड हो गया, इसमें मेटाफोरिक रॉक्स भी हो गए. सो इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म. जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आती है तो ये किस कलर में दिखती है, येलो कलर में. इसलिए इस सॉइल को रेड एंड येलो सॉइल भी कहते हैं. सो ये where this soil is found the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of the middle Ganga plains and along the Piedmont zone of the western Ghats. Western Ghat में भी मिलती है, Ganga plains में भी, Odisha and Chhattisgarh. So this is red and yellow soil. Clear? Okay, next we have laterite soil. So laterite soil develops under tropical and subtropical climates and the alternate wet and dry seasons. ठीक है, ये wet और dry seasons में alternate पे होती है.
This soil is the result of intense leaching due to heavy rain. अब लेटरेट सोil ऐसे क्यों हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेन के कारण इसका रिजल्ट जो है, ठीक। द सोइल सपोर्ट्स डिसिड्यूज एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस पुअर। ये जो सॉइल होती है ये सपोर्ट किसको करती है, डिसिड्यूस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट को, ठीक है। तो इसमें जो ह्यूमिड्स होती है वो बहुत पुअर होती है। दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। दो के लिए यूज होगी बहुत ज़्यादा, टी एंड कॉफी के लिए। सो लेट्रेटिक सॉइल आर एसिडिक, ठीक है, इसको याद रखो आप, इसमें एसिडिक होती है इन नेचर एंड जनरली deficient in plant nutrients. This type of soil is found mostly in southern states, western Ghats, region of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal and northeast regions. Clear? So this is a literate soil. So next we have arid soils. Arid soils range from red to brown in color. Okay, red to brown in color. This soil is generally sandy in texture. अब इसको arid soil को देखो तो इसका जो texture है वो sandy जैसा होता है, रेत जैसा, रेतीला. And saline in nature. In some areas the salt content is very high. कुछ एरिया में देखते हैं salt content बहुत ज़्यादा होता है. And common salt is obtained by evaporating the water. सो एरिड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो इसलिए जो एरिड सॉइल होती है इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। द लोअर horizons of the soil are occupied by कंकर, okay, because of the increasing calcium content downwards. The conker layer formation in the bottom horizons restrict the infiltrations of water. ये क्या करते हैं, जो restrict किसको करते हैं, infiltration of water. ये हमारी सॉइल है, ठीक है। दिस इज एरिड सॉइल, क्लियर। सो नेक्स्ट वी हैव फॉरेस्ट सॉइल्स। तो फॉरेस्ट सॉइल्स क्या, दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। द सॉइल टेक्सचर इज loamy and silty in valley sides and coarse grained in the upper slopes, ठीक है। ये जो टेक्सचर होता है ये लोमी सा होता है एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, ठीक है, और कॉर्स ग्रेन्ड होता है अगर अपर स्लोप्स में देखते हैं तो कॉर्स होता है थोड़ा। इन द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज द सॉइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर terraces and alluvial fens. So this was a forest soil. Now next we will see here that soil erosions कैसे होती है, ठीक है, और इसको कंजर्व कैसे करके रखेंगे. So I hope that you have understood all these the classifications of soil. Okay. Now next we have the denudations. Denudation is the formation. Okay, making a formation of soil. Denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosions. Washing down mean कि जब भी बहुत ज़्यादा रेन होती है या माउंटेन से आपने देखा होगा हिल एरिया से जो सॉइल है वो मीन कि नीचे गिरती है, दैट इज सॉइल इरोजन. The soil erosion is caused due to human activities like deforestation. क्यों होती है, एक सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटी आती है डिफॉरेस्टेशन. जंगलों का कटाव बहुत ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है, जो जितने जंगलों का कटाव करेंगे जो प्लांट्स जो सॉइल को पकड़ के होल्ड करके रखते हैं वो उसको नहीं कर पाते. तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है जो उनकी रूट्स में होल्ड हुई होती है वो उन रूट से बाहर हो जाती है. तो इससे भी सॉइल इरोजन होती है. ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, अगर कंस्ट्रक्शन का वर्क होता हो, माइनिंग वर्क होता हो, वहाँ पे भी सॉइल इरोजन के केसेस होते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है. ऑल्सो देयर आर सम नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर विच लेड टू सॉइल इरोजन्स. ये भी रीजन हैं सॉइल इरोजन्स के. सो सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. एक रीजन और भी है कि अगर फार्मिंग के सही मेथड, इफेक्टिव मेथड्स नहीं हमारे पास, डिफेक्टिव है, तो उससे भी क्या होगा, इट ऑल्सो कॉज्ड, ठीक है, सॉइल इरोजन्स. क्लियर. So next we have the running water cuts through the clay soils and makes deep channels as gullies. तो क्या होता है, रनिंग वाटर जो होता है वो अलग अलग चैनल बना देती है. द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन. जो लैंड है वो अनफिट हो जाती है, वो कल्टीवेशन के लिए नहीं रहती. एंड इज नोन एज बैड लैंड, उसको बैड लैंड कहते हैं. When water flows as a sheet over large areas, जब water उसके उस शीट लार्ज एरियाज में फ्लो करता है डाउन अ स्लॉप एंड
द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, और जो उसके ऊपर की सॉइल होती है, ठीक है, वॉश्ड हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शीट इरोजन। शीट इरोजन में कि ऊपर की जो तय है, लेयर है, वो क्या होगी, वॉश्ड अवे हो गई है। तो अगर विंड ब्लो होती है, तो विंड ब्लो से क्या होता है, लूज सॉइल ऑफ, जो ऊपर की लूज सॉइल होती है वो उड़ जाती है, ऑफ हो जाती है, ठीक है, ऑफ फ्लैट होती है। और स्लोपिंग लैंड, इसको हम क्या कहते हैं, लैंड नोन एज विंड। क्लियर? सो नाउ डिफरेंट वेज। अब पहले तो हमने देखा कि सॉइल इरोजन के रीजंस क्या क्या हैं, ठीक है, तो रीजंस हमने यहाँ पे देखे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग यहाँ पे, and some natural forces we saw that wind, glacier and water, okay, and the defective methods of farming. So next we have seen that the running water cuts through the clay soils and make deep channels like gullies. उससे भी क्या होता है, ये unfit cultivation के लिए होते हैं, and this is also known as bad land. Clear? So if the topsoil is washed away, is known as sheet erosions, and wind, अगर उसको लूज सॉइल को ऑफ कर देती तो दैट इज नोन एज विंड। नाउ अभी उसको कंजर्व कैसे करें, तो प्लोइंग अलोंग अ कॉन्ट्योर लाइंस डिसिलेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लोइंग, ठीक है। टेरेस कल्टीवेशन जो होती है, रिस्ट्रिक्ट इरोजन होती हैं। टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं, आपने देखा होगा कि हिल एरियाज में, हिमालयस में, जो वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वो प्लेन जैसा नहीं होता, वो टेरेस जैसे होता है ना, जैसे सीढ़ी जैसा। तो टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट्स इरोजन, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर practice is done in west and central Himalayas. When a large field is divided into strips, अगर बहुत ज़्यादा large field है उसको हम strips में divide कर देते हैं, on strips of grass are left to grow between the crops, then this breaks up the force of the wind, और वहाँ पे ये क्या करती है, break इसको करती है force of the wind को। This method is known as strip क्रॉपिंग, ओके, इसको हम स्ट्रिप क्रॉपिंग के नेम से जानते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यूज। प्लांटिंग, ठीक है, प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री, अगर हम ट्रीज की प्लांटिंग लाइन्स कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं, तो ये जो शेल्टर करती है किस चीज के लिए, ये हेल्प करती है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, ओके, एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। तो जो रोज ऑफ सच ट्रीज है, जिसको हम क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है, इनको हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डन टिल हियर दैट डिफरेंट वेज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। सो हियर वी हैव रेड टू द स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है एंड शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, ओके। So now this map is given. Here we shown the forest and mountains, alluvial, that red and yellow soil, and black and laterite and arid. What you will do? This is an assignment for you. You will mark the areas on the map where different types of soil is found. Okay. So here see how it is marked there. So you have to do the same. You have to paste this in your notebook. Okay. This will be your map work. So after this chapter, I will send the notes to you. Okay. So you have to write all the questions in your notebook and keep learning the questions. Okay. And thank you so much, students. Thank you so much.